Hello friends, welcome back to my life, that means Sagar's life, our channel name. So today's video I bring you the installation of the blind spot mirrors. Then now what are the blind spot mirror, why we use it, I will explain everything in this video. And also I will give you update about my TVS RR310 delivery date, because as you guys aware I haven't updated in my last video. All my subscribers are asking that what happens to your RR310. So in today's video I will give you update on the delivery date of my Akula. So as I said, these are the blind spot mirrors, which the same I have ordered from AliExpress. I got it for $1 to $2 for a pair. Also today I will open up this left hand side panel and clean the battery terminals, the plus and minus. Also put some grease. For cleaning of the battery terminal I will not shoot the video, as I already made the video about the same. You can find it on my old videos. I will give the link on description, that how to clean the battery positive and negative poles for the better performance of battery, because it's already 2.5 years, around 3 years going to complete to my bike, and still I'm using the same battery which is provided with the bike. So still no problem with bike itself. That thing I want to recommend you guys, if you maintain the beast properly, your bike properly, it will not going to give any of the problem to you. So everything will working fine. Also to give to update, yesterday I just opened up this sprocket again and remove the small sprocket, the chain and all these things, and done the greasing to it, because it was making some noise, cut tuck 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 tuck, something like that, whenever they freely moving that wheel. So I just open it, remove it, and just clean everything, remove all the excessive chain loop which is get stuck over here. So I that remove and done the greasing part. And now the chain is looking cool because I just clean and lube it. Also, if you guys want to know how to clean your bike chain and lube it, also to clean your bike sprocket, also made 2 different videos for the same. You can find out the same in my channel. Even I will give the link of description box down for the both the video, so you can check it out. Bike chain is very clean, and the sound, that cut tuck tuck sound, that even also has been gone. No sound from there. So yeah, let's start the installation of this blind spot mirror. So you can see I have ordered the 4 blind spot mirror. So why these are the 4? Let me tell you. These 2 I will install on my Gixxer, and these 2 I will going to install on my RR310. So if you guys have seen my previous videos before the Konkan ride and the starting of my moto vlog, you can see these blind spot mirrors on my bike. Here I install the same. But main problem to install this in Mumbai, park your bike in public space, that people easily get remove this just get remove this and install on their bike. So what happened previously, that one of my blind spot mirror goes missing from the public parking space. So from that I have avoid to install this one. But you can see these are the different ones. Previously which one I have directly get installed, the sticker will directly get installed and it get adjusted whenever you adjust this mirror. But these are totally different. So let me show you by opening the same. So I will keep these 2 aside and let's start the installation part. So let me show you how we install this blind spot mirror on your bike. Let me show what are the things we have in this package. So ऐसे 3 पार्ट में आ जाता है. तो ये जो पोर्शन है, ये जो स्टिकर्स है वो यहाँ पे लग जाएगा, और ये पोर्शन मिरर के ऊपर चिपक जाएगा, और इस हिसाब से ये चीज़ उसके अंदर बैठ जाएगी, और फिर ये जो मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर है ये जो यहाँ पे बैठेगा. तो जिस हिसाब से हमें चाहिए वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं. ये कैन सी 3mm टेप ब्रांडिंग हियर. होप दिस इज द ओरिजिनल 3mm टेप. तो इसको यहाँ से निकाल देना है. जो वाइट पोर्शन है उस साइड का टेप मैंने निकाल दिया और उसको एक्जैक्टली इसके अंदर लगा देता हूँ. दैट्स इट. ये परफेक्टली बैठ गया.
तो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब हमें इसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। तो उसके पहले ये 3 mm टेप निकाल के मिरर के ऊपर लगा देते हैं। सो ये जो पोर्शन है यहाँ पे लग जाएगा या यहाँ पे लगा जाएगा, आपके ऊपर चॉइस है कहाँ पे लगाना है आपको। तो प्रीवियसली जो मेरे पास ब्लाइंड स्पॉट्स थे उसके ऊपर ये एडजस्टेबल स्टाइल्स के नहीं थे, तो डायरेक्टली टेप्स थी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था, तो हिसाब से मुझको व्यू मिल गया था। मगर अब ये जो है जो एडजस्टेबल है, तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ तो यही ब्लाइंड स्पॉट उतना हिसाब से बाहर की तरफ आ जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट ग्रेट आइडिया। वी ऑल नो जिक्सर के मिरर्स कितने बड़े हैं, ट्रैफिक में हमको कितनी परेशानी हो जाती है विथ राइडिंग द बाइक बाय ओपनिंग द मिरर, और उस हिसाब से ये ब्लाइंड स्पॉट और बाहर की तरफ लगा दी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स है जो यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। आपके ऊपर चॉइस है, व्यू तो सेम ही मिलेगा क्योंकि ये जो है 180 डिग्रीज है, आपको बैक साइड का टोटली पूरा पोर्शन दिखा देता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फॉर दैट जो बैक साइड का दूसरा टेप था वो 3 mm था, वो मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने निकाल दिया। तो ये जो है एग्जैक्टली हमको राइट हैंड साइड पे लगा देना है, इस एज को टच करके। अभी तो थोड़ा पुश करना है इसको, ये दोनों फिंगर से पुश कर देता हूँ तो ये मजबूती से यहाँ पे चिपक जाए। फिर अनदर हैंड से इसको पीछे मिरर को सपोर्ट देता हूँ तो ज़्यादा पीछे के साइड ना चला जाए। ये आई थिंक इनफ ऑफ प्रेशर हो चुका है, ये परफेक्टली बैठ चुका है। अब इस चीज़ को यहाँ पे लगाना है। उसके पहले इस साइड को, ये जो 3 mm का टेप है आप देख सकते हैं 2 स्टाइल टाइप्स के हैं, एक अंदर की साइड से एक बाहर की साइड से। तो अंदर की साइड का जो टेप है वो रिमूव कर देना है और वो पोर्शंस यहाँ पे एग्जैक्टली बैठ जाएगा। देख लीजिए ये ऐसे बैठ जाएगा। तो ये 3 mm का टेप निकाल देता हूँ मैं अंदर का। दैट्स इट, ये ऐसे निकल जाता है। कचरा ज़मीन पे नहीं फेंकना है। कैसे लग गया? इसको भी थोड़ा प्रेशर से पुश करके प्रॉपरली अटैच करना है ऑल ओवर एजेस से। तो ये लग चुका है। अब इसको इसके यहाँ पे माउंट कर देना है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, स्लाइडली पुश करना है। तो आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जो फुल मिरर और ये ब्लाइंड स्पॉट्स, इतना गैप दोनों के बीच में है। सो ये जो है वो एक साइड का हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड का लगा देते हैं। सो इस ब्लाइंड स्पॉट का और एक बेनिफिट्स है जो इस स्टाइल का है, जब भी यहाँ पे आप बाइक पार्क करते हो और आप जानते हैं कि जो एरिया सेफ नहीं है, सो ये ब्लाइंड स्पॉट आप रिमूव कर सकते हैं पुश करके। दैट्स इट, ये रिमूव हो गया। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, ये आप निकाल के अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का तो हो चुका है, अब राइट हैंड साइड का ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंस्टॉल कर देते हैं। सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। स्लाइडली पुश कर देता हूँ मैं, ज़्यादा वजन नहीं देता हूँ उसके ऊपर ताकि टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों भी ब्लाइंड स्पॉट मिरर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके। सो अब मैं आपको इसका बेनिफिट्स बता देता हूँ। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मिरर हमको मिरर्स के ऊपर क्यों इंस्टॉल करनी चाहिए, समझा देता हूँ इसका बेनिफिट्स ब्लाइंड स्पॉट मिरर का। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर रहता है उसका व्यू इतना ही दिखा देता है। तो आपका जो हाथ है तो हाथ के पोर्शन की इतना ही दिखा देता है। मगर जब आप ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा देते तो आप देख सकते हैं अदर देन आपको इस साइड का भी एरिया भी व्यू आ जाता है। तो ये 180 डिग्रीज का रहता है। तो उस हिसाब से ये पोर्शन तो यहाँ पे है ही, और हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का पोर्शन व्यू करना है तो इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर में इजीली दिख जाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का हाथ टोटली यहाँ पे दिख रहा है, सेम राइट हैंड साइड मिरर्स पे भी। तो देख लीजिए, तो यहाँ से मुझको मेरा लेफ्ट हैंड साइड का एरिया दिख रहा है और राइट हैंड साइड एरिया यहाँ पे है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड का व्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ जब काम में आते हैं, जब हमें पता है जो रास्ते पे स्क्विड्स बाइक चलाते हैं जो यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आकर के ओवरटेक करते और अचानक अपनी लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में दिखेंगे, टू अवॉइड दैट
हमारे सेफ्टी के लिए these mirrors are most important for us on roads. सो ये हमें एक साइड का मिरर्स हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दोनों साइड का व्यू दिखा देता है. सो इट इज़ फॉर सेफर साइड. आप देख सकते हैं मुझे कैसे व्यू मिल रहा है. तो ये जो मैं बाइक पे बैठा हूँ एग्जैक्टली मिरर्स एडजस्ट किए और मुझे लेफ्ट हैंड साइड के मिरर में राइट हैंड साइड का एरिया भी दिख रहा है और राइट हैंड साइड के ब्लाइंड स्पॉट में लेफ्ट हैंड साइड का एरिया भी कवर हो रहा है. होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा. अदर ऑल्सो फॉर द मोर डिटेल्स ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं तो आप देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट तो वीडियो में आपको दिखा दिया मैंने कैसे ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंस्टॉल करते हैं. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट मीन्स द अपडेट ऑफ RR310. सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तो हो चुके हैं, हो नहीं चुके, 2 दिन बाकी है फॉर कंप्लीटिंग माई 2 months ऑफ बुकिंग RR310. सो रेगुलरली मैं शोरूम पीपल से बात कर रहा हूँ, उनके कांटेक्ट में हूँ. तो उन्होंने मुझे लास्ट अपडेट बताई है कि सिर्फ अभी तक 3 RR31 डिलीवरी मुंबई में दे चुके हैं. 2 है रेड कलर में और 1 है ब्लैक कलर में. उनके पास जो स्लॉट आ रहा है उसके अंदर ब्लैक कलर की बाइक जो ज़्यादा आ रही है, 4 या 5 बाइक ब्लैक कलर की बाइक्स आई है और रेड कलर की बाइक्स एक भी नहीं है. और जो बुकिंग है वो बुकिंग रेड कलर की ज़्यादा है, ब्लैक की कुछ भी नहीं है. उस हिसाब से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने मुझको कांटेक्ट किया, तो हम बता दीजिए कि रेड गाड़ी के लिए और टाइम लगेगा, ब्लैक गाड़ी अवेलेबल है. सो आप चाहिए तो ब्लैक गाड़ी का डिलीवरी ले सकते हैं. बट एज यू गाइज अवेयर दैट रेड कलर में RR310 बहुत अच्छी लगती है. सो आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो विथ रेड ओनली, नॉट द ब्लैक वन. करंटली बुकिंग काउंट है वो भी अप्रोक्सीमेटली 60 के ऊपर चली गई है RR310 की मुंबई में. करंटली डिलीवरी पीरियड जो बता रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 6 months का बता रहे हैं. सो 6 months जो भी अभी बाइक बुक करके जाएंगे उनको मिलेगा. एज़ पर शोरूम पीपल लास्ट वीक TVS के CEO आए थे यहाँ पे मुंबई में विज़िट के लिए कि अप्रोक्सीमेटली बाइक की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी बुकिंग्स हो चुकी है. उन्होंने पूरा देख लिया. उन्होंने ऐसा सबसे एज्यूम किया था कि ब्लैक गाड़ी की डिमांड ज़्यादा रहेगी, इस हिसाब से उन्होंने ब्लैक का स्लॉट भेजा था मुंबई के लिए. मगर जब वो खुद ही आके व्यूज़ कर लेके जो बुकिंग उन्होंने वेरीफाई कर ली, हर एक की बुकिंग थी और रेड की थी. सो उस हिसाब से अभी उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 10 days में एक रेड बाइक की स्लॉट आ जाएगी और टोटल अप्रोक्सीमेटली 45 रेड कलर में 310 आने वाली है. सो उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो भी लास्ट ईयर दिसंबर के जो उन्होंने भी बुकिंग की थी वो स्लॉट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जनवरी के स्लॉट को हाथ लगाएंगे. सो होप अभी से सिर्फ रेड कलर की RR310 मुंबई में आएगी और तो जिन्होंने बाइक की बुकिंग की है कंटिन्यूसली उनका डिलीवरी मिलते जाएगी. सो होप नेक्स्ट 2 weeks में रेड कलर की बाइक्स आ जाए मुंबई में और उनकी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए. उस हिसाब से जल्दी अब मेरा भी नंबर लग जाएगा और जैसे ही बाइक आ जाती है उसका तो PDI का वीडियो, डिलीवरी वीडियो मैं तो कवर करूँगा ही आपके चैनल पे. सो आप लोगों को वो दोनों वीडियो व्यू करने हैं तो एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज एज आई सेड लास्ट वीडियो और माय प्रीवियस वीडियो कि पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इससे वीडियो व्यू कर रहे हैं. तो उस हिसाब से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप दोनों भी वीडियोस के लिए अप टू डेट हो जाएंगे और जो भी इन फ्यूचर के जो जिक्सर के लिए वीडियो में बताऊंगा उस हिसाब से आप अपडेटेड रह जाएंगे. तो दैट्स इट इन दिस वीडियो. इफ़ यू गाइज थिंक दिस वीडियो इज़ गुड इनफ so don't forget to hit that like button. Don't forget to share the same with your friends too who has owned the Gixxer. So this is Sagar signing off. Bye bye.